Is visible properly? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. अमृता, ये देखो किसका कॉल है, कोई बच्चे का नहीं है। पकड़। देखो, बेसिकली वी नीड टू गो इन दिस मैनर इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी करेंगे, लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस डिस्कवरी को देखने के बाद we'll see the photoelectric effect here. Then we have to arrange discovered atomic particle like electron, proton, neutron in a given structure. हमें उसे एक स्ट्रक्चर में अरेंज करना होगा and that structure is called atomic structure. Mainly 4 models were well accepted till now. पहला मॉडल था J.J. Thomson's model, second one Rutherford's model, third one Bohr's theory, fourth one biomechanical model. ये मॉडल्स हमें डिटेल में देखना है। Then at the end of this chapter, electronic configuration plus nuclear chemistry. This is the flow of the chapter. Again, ये just इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम पढ़ रहे हो चैप्टर में आगे बढ़ रहे हो तुम्हें एक रफ आइडिया रहे, अच्छा ये चीजें हमें कवर हो गई हैं, ये हमें भी कवर करना बाकी है। Yeah? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिना रीजन के, अननेसेसरी रीजन के या बिना ऐसा कोई रीजन हो जो अवॉइडेबल हो या अनअवॉइडेबल रीजन ही तो एक बात अलग है, अदरवाइज वी हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स कंपलसरी। क्लियर? ऐसा नहीं कि हम फ्रीक्वेंटली लेक्चर मिस कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंटली लेक्चर मिस करोगे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो ये चीजें इतनी इजी नहीं है कि तुमने एक लेक्चर मिस किया दूसरे लेक्चर से फिर सब समझ में आने लगेगा। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं, तुम एक भी लेक्चर मिस करोगे आगे की 3 लेक्चर की 2-3 लेक्चर की चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो बेसिकली यू आर नॉट मिसिंग ओनली 1 लेक्चर,
you are missing almost 2 3 4 lectures of that subject, that topic. तो ट्राई करो यदि लेक्चर ना मिस हो, बहुत ही ऐसा रीजन है अवॉइड नहीं किया जा सकता था, तो यदि लेक्चर मिस हो गया है ट्राई करें उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर के पहले उसका वीडियो लेक्चर्स देखें। क्लियर? Yes, sir. हो गया पूरा कॉपी? Yes, sir. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। क्लियर? नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट? You have to draw this diagram, right? Discovery of electron cathode rays experiment. This is cathode ray setup, which is also called canal rays experiment. Here, discharge tube experiment. तो discharge tube setup भी से कहा जाता है। Negative terminal connected. This electrode connected with negative terminal of battery, negative charge हो गया. This terminal connected with positive terminal of battery, positive one. Positive terminal called anode, negative one is called cathode. Vacuum pump. The use of this vacuum pump is to create very low pressure inside this glass tube. जो पूरा covered है glass tube, इसके अंदर बहुत कम pressure create करने के लिए होता है. Yeah? So यहाँ पे गैस बहुत कम प्रेशर पे है and the pressure is decreased with the help of vacuum pump. This is glass tube. क्या पूरा सेटअप क्लियर है? Yes, sir. अपूर्वा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है रफली यहाँ पर? अपूर्वा? Yes, sir. How much potential difference we have applied here? Sir, 10,000 volt. ये जो 10,000 वोल्ट है अपूर्वा, ये कम है, ज्यादा है, कैसा है? ज्यादा है. ज्यादा है, बहुत ज्यादा है.
Yeah, it is big. ठीक है, चैतन्य, चेतन, Yes, Yes, sir. what is the potential difference that for the domestic purpose? What is the potential difference that we use at our home? जो domestic purpose में use होता है, कितना होता है वो difference? घर में 240 वोल्ट सुना होगा ना? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. तो जनरली हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है that is around 240 volt, and even if we touch by chance, by mistake, if we touch any open wire, we feel lot of like current in that 240 volt. This is the 10,000 volt. उससे almost 40-50 times ज्यादा है. Clear? It is very large potential difference. Now this is not the normal condition, ordinary condition. These are the extreme condition of potential difference and the pressure of gas. The very low, almost vacuum create कर दिया है. So when you create such kind of condition, potential difference is very large and the pressure of gas is very less. In such kind of scenario, there will be some deflection in this system. ये जो यहाँ पे system लगा था, तुम इसे गैल्वेनोमीटर बोल दो, एमीटर बोल दो, any instrument which can detect the current. ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकता है. क्लियर? तो जब तुमने इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, बहुत कम गैस का प्रेशर किया, यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा. सी, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था इन 1850s के आसपास में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था. मतलब नॉट एग्जैक्टली 1850, 50-60 उस टाइम पे किया था, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, जब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं पता था. बट यस, वी डू नो अबाउट द करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज होती है, इसके बारे में हमें तब भी पता था. अब इलेक्ट्रिक करंट होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज देयर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें नहीं पता था. क्लियर? सो इलेक्ट्रिक करंट इज देयर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वाज नॉट नोन एट द टाइम. सो यहाँ पर अच्छा एक और चीज हमें पता थी. क्या तुम्हें आज ये पता है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे फ्लो होता है? इफ लेट्स से दिस इज द वायर, ये मैं एक इलेक्ट्रिक वायर लेता हूँ, क्या मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकता हूँ? क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, बस इस sir. वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा बिना No, सर्किट sir. कंप्लीट किए. No. Without the No, circuit sir, and no. No, sir, without circuit. It will lead potential Without- difference. Without completing the circuit, we cannot flow the electric current here. ओपन वायर में कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है. क्लियर? ऐसा बोलते हैं ना, हमें इलेक्ट्रिक करंट, यदि हमने कुछ ऐसे प्लास्टिक के स्लीपर्स पहन, प्लास्टिक का कुछ पहन रखा है, स्लीपर्स पहन रखे हैं, और हम उस वायर को टच भी करेंगे तब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है. वो स्लीपर डिस्कनेक्ट कर रहा है अर्थ को और हमारे बीच में. क्लियर? यदि हम अर्थ से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन करंट हमारी बॉडी से फ्लो होकर अर्थ में चला जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा. सो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ये हमें तब भी पता था. ओपन वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है. क्लियर? सो यहाँ पर एक बैटरी का टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ से कनेक्ट किया, उसको ओपन रखा है, ओपन ही है सिस्टम. सो इन जनरल वी डोंट हैव इलेक्ट्रिक करंट हियर, we do not get any reflection here. But as you increase the potential difference up to 10,000 volt, and the pressure of gas is very low, in such kind of scenario we get some deflection here. So यहाँ पर जब ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें लगा कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आया. डेफिनेटली समथिंग मस्ट बी देयर इन बिटवीन दिस कैथोड एंड एनोड. कुछ तो उनके बीच में रहा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है. क्लियर? सो पहला थॉट गया, इस एक्सट्रीम कंडीशन पे यदि हमें कुछ रिफ्लेक्शन मिला है तो करंट तो फ्लो हो रहा है, सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है. अब सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है, ये ऑब्जर्व करना है. क्या इतना समझ में आता है? क्या थॉट Yes, प्रोसेस? Yes, Yes, sir. 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 yes, sir. ये डायग्राम सभी ने बना लिया है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, वो तुम्हें नहीं बनाना है ना, इतना ही बना के छोड़ना था. अब हमने क्या किया, इसी सेटअप में इस एनोड के पीछे, इफ वी मेक सर्टेन होल्स ऑन दिस एनोड, इस एनोड पे हमने कुछ होल्स कर दी. या हमने कुछ होल्स किए, and if we put some phosphorescence material behind this anode, ZNS plate, zinc sulfide plate, phosphorescence और fluorescence material हमने रखा.
क्वेश्चन सर व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस मटेरियल? फॉस्फोरेसेंस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं व्हेन दे आर हीटेड बाय सम पार्टिकल्स, उन पे यदि कुछ पार्टिकल्स कुछ रेडिएशंस फॉल होंगी तो वो उस पॉइंट पे ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब हमें ऐसी चीजें जो नहीं दिख रही है, हमने एक फॉस्फोरेसेंस मटेरियल रखा, यदि वहां पे ग्लो होने लग गया तो हमें पता लगेगा कि हाँ वहां पे कुछ हिट हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एल्यूमिनियम फॉइल। क्लियर? एल्यूमिनियम फॉइल लाइट का रिफ्लेक्शन देती है, कुछ ग्लो करती है, व्हाइट कलर का ग्लो होता है वहां पर। सो जो हम फूड पैकेजिंग में यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल। तो ऐसा ही कुछ फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी वो ग्लो करेगा व्हेन सम पार्टिकल हिट ऑन दैट फॉइल ऑन दैट ZnS प्लेट। अब हमने ये ऑब्जर्व किया जस्ट बिहाइंड द होल, हमें यहाँ पर जो हमने होल्स किए थे, जस्ट बिहाइंड द होल्स वी आर गेटिंग सर्टेन व्हाइट और ग्रीन स्पॉट। हमें कुछ ग्रीन स्पॉट मिल रहे थे या व्हाइट स्पॉट मिल रहे थे, मतलब हमें कुछ कलर मिल रहा था। इससे ये हमें पता लगा समथिंग इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द एनोड, कुछ तो है जो एनोड की तरफ फ्लो रहा है, और एनोड पे होल करेंगे तो वो जस्ट एनोड के पीछे जाके स्ट्राइक हो रहा है। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहला हमने एक्स में चेंज किया, सेटअप में हमने होल्स किए, होल किए तो कुछ पार्टिकल जाकर एनोड को स्ट्राइक हो रहे थे डायरेक्टली, ये हमें पता लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कहां से जनरेट हो रहा है? द थिंग व्हिच इज स्ट्राइकिंग टू द ZnS प्लेट, दे आर जनरेटेड बाय whom? तो पहला तो एक्सपेक्टेशन यही होगा, यहां से यहां के बीच में करंट गया तो हो सकता है इसने जनरेट किया हो, बट स्टिल हमने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके तरफ कुछ जाएगा तो इसे क्रॉस नहीं करेगा, सॉलिड है। इस ओपेक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 पे, पोजीशन 3 पे, ऐसे 3 अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है इन्हें। ठीक है? अब 3 पोजीशन के बाद इसे रखा गया 4th पोजीशन बिहाइंड द कैथोड, ऐसे 4 पोजीशन पे रखा। When you put this opaque object in position 1, in position 2, in position 3, you will not get any white or green spots on the ZnS plate. मतलब कोई भी चीज जो एनोड की तरफ फ्लो हो रही होगी, जिसके कारण हमें कुछ ग्लो मिला था, that will be blocked by this opaque object. अब वो उसे फ्लो नहीं होने दे रहा है। But if you put that opaque object behind the cathode, now again you are again this white glow will start over here on ZnS plate. Again we get certain white or green spot on the ZnS plate. If you put that opaque object behind the cathode, कैथोड के आगे रखा ब्लॉक हो रहा है, कैथोड के पीछे रखा ब्लॉक नहीं हो रहा है, क्या सजेस्ट करोगे? क्या सजेस्ट कर सकते हो, बताओ? It is generating जो from भी है वो cathode. कैथोड से है। जनरेटिंग फ्रॉम They are generated from cathode, वो कैथोड से जनरेट हो रहे होंगे। क्या कैथोड के आगे रखा तो ब्लॉक हो गया, कैथोड के पीछे रखा तो ब्लॉक नहीं हुआ। दे आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड। सो यहाँ पे जो ग्लो मिल रहा था तो सबसे पहले हिंट मिलती है कि कुछ रेडिएशंस होंगी, कैथोड ने जनरेट की, उन्हें नाम दे दिया गया कैथोड रेज। कैथोड रेज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड, तो कैथोड रेज बोल दिया गया। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, यस sir. सर Yes, sir. आते हैं हम नेक्स्ट वेरिएशन पर। यहां पर हमने एक मैकेनिकल फैन रखा इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। मैकेनिकल फैन मींस वही फैन जो हमारे रूम में लगा है, यदि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे हो, उसे तुम पुश करोगे, फोर्स लगाओगे फ्रेंड्स, तो रोटेट करेगा। ऐसा ही मैकेनिकल फैन। जब हमने मैकेनिकल फैन यहाँ पे रखा, हमने ये ऑब्जर्व किया, दिस मैकेनिकल फैन स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगा, राइट? सो यदि वो रोटेट होने लगा मतलब उस पर कुछ फोर्स लगा है, उसका एक्सेलरेशन आया है। सो वी ऑलवेज अप्लाई फोर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मास। क्या ये फॉर्मूला देखा है पहले कभी? Yes, sir. Yes, यस sir. सर Yes, sir. Which law is this? So force is equals to mass into acceleration. कौन सा लॉ है? न्यूटन्स लॉ है क्या?
Fourth equation. Yes, sir. Which one? First, second, third, fourth law कौन सा है? Second. सेकंड लॉ. कितने लॉ है न्यूटन के? 9, 10, 8 कितने लॉ? 3. Three. पक्का? फोर्थ नहीं पढ़ा अभी तक? No, sir. No, sir. ठीक है. So there That are is only just- 3 laws. नहीं फोर्थ कल ही सजेस्ट किया है न्यूटन ने. नहीं देखा न्यूज़पेपर आज? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so if we are getting certain acceleration on this mechanical fan, means something is there which is applying certain force, और force कौन apply कर सकता है? जिसका mass हो. So यहाँ पर हमें सबसे पहले cathode rays जब हमने बोला था, cathode rays means radiations means no mass, but ये तो mass आ गया है यहाँ पे picture में. So cathode rays, they are not radiations. We can explain using this experiment. They are the particles. Cathode rays radiation नहीं थी, वो particles थे. अब particles कौन से थे? So उन particles को electron name दिया गया. That particles is called electron. No doubt इसका भी कुछ meaning रहा होगा, कुछ Greek letter रहा होगा. I don't know कि कौन सा letter था, Greek था, German था. But उसके particle को electron नाम दिया गया. ठीक? अब हमने ये तो पता कर लिया इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अब बारी आती है चार्ज की. क्या इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज भी पॉसिबल है? चलो इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं. अब क्या किया, यहां पर इसे तो हटा दिया गया मैकेनिकल पेन को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई की. यहां पे लगा दिया गया पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे लगा दिया गया नेगेटिव टर्मिनल. जब हम यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करेंगे, this cathode rays which were moving in the straight path initially, now they will not move in the straight path, they get deviated towards the positive terminal. वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो गई. क्या कौन से टाइप के चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होंगे? Negative. Negative charge. नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन यहां से बताया गया ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. फर्स्ट थिंग, हमने इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसकी डिस्कवरी की. सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन का मास है इसकी डिस्कवरी की. थर्ड थिंग, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, मतलब उनका कुछ मास है, दे आर नॉट रेडिएशंस. तो इतनी डिस्कवरी हमने कर ली. क्लियर? सो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, वो गलत प्रूफ कर दिया गया. सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुका था आफ्टर 1808, जब डाल्टन ने अपना मॉडल सजेस्ट किया. ऑलमोस्ट 60-70 साल तक उसे सही एज्यूम किया गया. 60-70 इयर्स के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ, जिससे डाल्टन को गलत प्रूफ कर दिया गया. कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. ठीक है. अब रही बात, कुछ इनमें पॉइंट्स लिखने हैं हमें. कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है, जो लिखना है लेक्चर नोट्स में. क्लियर? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूं ताकि तुम वहां से लिख लो, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी में लिखा हुआ वर्डिंग उसमें एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगी. Krishna, please keep on mute mode.
Just a minute. Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले Yes, sir. हम पढ़ लेते हैं, फिर उसे कॉपी करना, रुक जाना, कॉपी मत करना ना अभी. ओके, कौन पढ़ेगा फर्स्ट 2 पॉइंट्स? एनीवन? सोहम? हाँ शेखर, पढ़ो चलो फर्स्ट 2 पॉइंट. First is cathode rays travel at a very high velocity on a straight path as it produces shadow of an object placed in its path. Second one, cathode rays produce mechanical effects if small light paddle wheel is placed between the electrodes. It rotates. This indicates that the cathode rays consist of material particles. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड इट कैन क्रिएट द शेडो. और इवन ये हमने देखा भी, हमने जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो उसका शेडो मिला. शेडो मिलना मतलब लाइट स्पॉट नहीं मिलना, व्हाइट और ग्रीन स्पॉट्स नहीं मिलना. जहां पे लाइट मिल रही है वो शेडो नहीं. शेडो मतलब जहां पे लाइट ब्लॉक हो रही है. क्या फर्स्ट पॉइंट सभी को समझ में आता है? जो हमने फर्स्ट सेकंड चेंज किया था, ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, क्या उतने पार्ट पे वो ब्लॉक हो गए थे ग्रीन स्पॉट, Yes, और sir. बचे हुए पार्ट पे ग्रीन और व्हाइट स्पॉट्स मिल रहे थे? इसका मतलब क्या हुआ? उसका शेडो मिल रहा है हमें, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट, Yes, sir. दे कैन क्रिएट मैकेनिकल इफेक्ट. हमने जब स्मॉल लाइट पेडल, जिसको मैंने मैकेनिकल फेन वर्ड बोला था, देयर इज लाइट पेडल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इट स्टार्ट रोटेटिंग. मतलब वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं. थर्ड पॉइंट, when electric and magnetic field applied, cathode rays in the discharge tube deflected in such a manner like a negatively charged particle. वो उस मैनर में डिफ्लेक्ट होती हैं जैसा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डेविएट होते हैं. इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. फोर्थ पॉइंट, they produces a green glow when it strike the glass wall beyond the anode. Bright spot is developed when they strike the zinc sulfide screen. क्या फोर्थ पॉइंट सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जो हमने लिया था? ग्रीन ग्लो बिहाइंड द Yes, एनोड sir. ऑन Yes, sir. ZNS प्लेट. अच्छा, ZNS प्लेट को क्या कहा जाता है? 2 वर्ड मैंने यूज किए थे, Fluorescence plate. फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next point, fifth one, cathode rays penetrate through the thin sheet of aluminum and metals. Means if there is a thin sheet with the less thickness, they can cross such kind of material. वो उन्हें क्रॉस कर जाती है, पेनिट्रेट कर सकती है. क्लियर? सो कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन पेनिट्रेट थिन शीट. थिकनेस ज्यादा हुआ देन डेफिनेटली दे विल बी ब्लॉक्ड, बट थिन शीट हुआ तो उन्हें पेनिट्रेट कर सकती है. सिक्स्थ, दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट करना मतलब कुछ इमेज क्रिएट करना, शेडो क्रिएट करना. क्लियर? तो ऑलरेडी वो ये पॉइंट जो शेडो क्रिएट हो रहा था उसी का एक सब्सिक्वेंट पॉइंट है. सेवंथ वन, द रेशियो चार्ज बाय मास ऑफ the ratio charge by mass is same for all cathode rays irrespective of gases used in the tube. Thus it can be concluded that electrons are basic constituent of the atoms. Second last point काफी यूजफुल है, एक बार सभी पढ़ो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं उसे. 7 के पहले मैं 8 बता देता हूं. कैथोड रेज आर इनविजिबल, we cannot see them by our eyes directly. इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा जा सकता है. चलो 7th पॉइंट पढ़ो. और कोई मुझे ये पॉइंट पढ़ने के बाद एक्सप्लेन कर सकता है इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? 7th पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? Can anyone explain this point? Yes, sir. बताओ.
Sir, it says that if we take any electron of any element, then the ratio of charge by mass will be always equal of all ठीक है। the elements. मतलब बेसिकली तुमने कैथोड को सोडियम का कैथोड लिया है, सीजियम मेटल लिया है, मैग्नीशियम मेटल लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, आयरन लिया है, व्हाटएवर मेटल यू कैन टेक देयर, द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। ये बोलना चाह रहे हैं, ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ दे आर द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। फंडामेंटल मींस आयरन का इलेक्ट्रॉन दैट विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन, विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम सोडियम इलेक्ट्रॉन, विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन से एक बार एटम से बाहर आ गए तो वो आइडेंटिकल होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल होते। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो काफी अच्छा पॉइंट सजेस्ट किया गया है ऑब्जर्व करके कि इलेक्ट्रॉन इस पे मैटर ही नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी वहां पे कैथोड एनोड क्या यूज किया, गैसेस क्या यूज की गई, सबके इलेक्ट्रॉन सेम हो। चलो जल्दी से 8 पॉइंट्स कॉपी कर लो। यश, उत्कर्ष, स्वामी, जब भी कॉपी हो जाए कंफर्म करना, राइट? स्वामी, कॉपीड और नॉट? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। You might have such kind of question, which of the following is characteristics of cathode rays? तो चार ऑप्शन में से हो सकता है एक ऑप्शन सही हो। Either you can have such kind of question, which of the following is not the property of cathode rays?
मैं ये नहीं बोलूँ इन्हें मगअप करना है, बट हाँ एक बार पढ़ने के बाद समझ लेना है क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो याद रह जाएंगी। मतलब ऑप्शंस देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए प्रॉपर्टी है या नहीं। तब तुम बोलोगे मुझे कि आई8 प्रॉपर्टी एज इट इज मैं भी लिख दूं लैंग्वेज सब कुछ, तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा उतना। अगेन जेई में भी हैव टू गो लॉजिकली, मगअप करना होता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें एकदम मगअप करनी होती है। लॉजिकली हमें समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन देखकर टिक कर सकते हैं। प्रथमेश का मैसेज है सर कैन वी टेक स्क्रीनशॉट एंड कैन वी राइट लेटर। डेफिनेटली कर सकते हो ऐसा, बट मैं थोड़ा सा प्रेफर ये कर रहा हूँ कि चीजें हम लेक्चर नोट्स स्पेशली क्लास में ही कंप्लीट कर लें। होप अब तक तो हो गया होगा। कर्ष Yes, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, okay. Now the second thing, we have discovered the electron. Now we need to discover next proton. Discovery of proton bracket anode rays experiment. क्लियर? उसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कहा गया, इसे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। सुनना ना, अगेन कॉपी बाद में करना, पहले सुनना समझ लेना। इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ था, वो सर्किट कंप्लीट कर रहा था जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट आया था हमारे पास। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से वी हैव सम हीलियम गैस ओवर हियर। गैसेस है डेफिनेटली बहुत कम प्रेशर पर है, बट स्टिल वी हैव सर्टेन गैसेस एटम। पता है हीलियम का जो एटम होता है, इस हीलियम एटम में एक न्यूक्लियस होगा
जिस पर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे एंड इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इसके जो आउटर शेल है, एक ही शेल है, उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। So 2 protons and 2 neutrons at the center nucleus, 2 electrons are revolving around the nucleus. ये कुछ रहता है। अब the electron which ejected in cathode rays experiment, that electron might collide with this helium atom. हो सकता है वो helium atom के साथ collide हो। helium atom ये न्यूक्लियस पूरा एटम, उसके साथ के कुछ इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हैं। क्लियर? या आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन ये गैसेस दोनों के बीच में था, कैथोड एनोड के बीच में, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इट मे कोलाइड टू दिस इलेक्ट्रॉन, और हो सकता है उसे इतना एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाए। अब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, He कन्वर्ट हो जाएगा He+ में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर, ऐसा कुछ हो जाएगा। न्यूक्लियस शेल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर और एक इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर हमारे पास। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मुझे बताओ, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, He+ आयन विल मूव टुवर्ड्स व्हिच टर्मिनल? पॉजिटिव आयन किस टर्मिनल पे जाएगा? Negative terminal. Cathode. टर्मिनल की तरफ जाएगा। क्लियर? अब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया, जैसे कैथोड रेस कैथोड की तरफ जा रही थी, ये गैसेस आयंस किस तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ। जैसा चेंज हमने कैथोड रेस सेटअप में किए थे, we can perform similar kind of change here also, और वो चेंजेस परफॉर्म करके हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट करते हैं। दिस गैसेस आयन इज नॉट प्रोटॉन, बट यस इट हैज पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन आता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा था इस पर। जो एक्स्ट्रा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन। हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे। If you remove one of the electron, now it has one less electron, one extra proton. So इसके पॉजिटिव चार्ज की जब स्टडी की गई तो प्रोटॉन का पता चला। Again, anode rays are what? They are gaseous ion. क्या वो प्रोटॉन से? No. Cathode rays are electron, but anode rays are not proton. They are the positive gaseous ions, and on the basis of this positive ion, we were able to detect the presence of proton, existence of proton. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. एक बार Yes, रिपीट sir. कीजिए जितना Sir, बोर्ड can पे you लिखा है, explain again? हाँ बता दो। सर, एक बार रिपीट जितना कीजिए बोर्ड पे लिखा है वो लिख लिया है क्या? सर, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ मैं रिपीट तो कर रहा हूँ, पहले लिख लिया है तो मैं रब करके फिर लिख के रिपीट करता हूँ उससे सर। नो सर, नहीं लिखा। तो ये डायग्राम बनाना है और इतना लिख लेना है। चलो देखो सुन लो एग्जैक्टली
फिर से, anode rays are positive gaseous ions formed by collision of cathode rays with gaseous atom. When cathode rays are moving from cathode to anode, during that movement, this can strike to the atom and it can eject electron from the atom. So helium से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, पॉजिटिव आयन बन गया. ये पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा और जब हम उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, then we can predict the existence of proton positive charge. He प्लस एक पॉजिटिव चार्ज था, क्लियर. उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों है, उसकी जब डिटेल में स्टडी की गई तो प्रोटॉन के बारे में पता लगा. क्या अभी क्लियर है? ये सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, एटम है गैसियस, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, क्या बचा? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, गैसियस आयन बन गया. वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की स्टडी की गई, उसमें प्रोटॉन के एग्जिस्टेंस का पता लगा. इज दैट ओके नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, कैथोड रेस कहां पे जनरेट हुई थी? कैथोड पे जनरेट हुई थी क्या? Yes. Yes, sir. कैथोड रेस कैथोड से जनरेट हुई. एनोड रेस कहां जनरेट हुई? Node. Anode. कैथोड से. Helium. Positive ion of helium. मार्कर एक भी नहीं चल रहे हैं. Cathode rays are generated by cathode, but anode rays are generated in between cathode and anode. तो अब तुम एक क्वेश्चन ये रेज कर सकते हो, सर कैथोड रेज जब कैथोड ने जनरेट की थी इसलिए उन्हें कैथोड रेज कहा गया था. देन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एनोड रेज? ये तो एनोड ने जनरेट नहीं की है. इसको इसलिए ऐसा नाम दिया गया, कैथोड रेज नेगेटिव थे, एनोड रेज पॉजिटिव है, जस्ट अपोजिट चार्ज थे, इसलिए उन्हें कैथोड एनोड ऐसा बोल दिया गया. हाँ, वी कैन से दैट cathode rays are moving away from cathode, anode rays are moving away from anode. anode ने जनरेट नहीं की बट दोनों अवे मूव कर रही है. क्लियर? Sir, what is that word after anode rays are positive? Sir, this one down. gaseous ion, gaseous, gaseous ion. Okay, thank you, sir.
characteristics like charge by mass ratio of anode rays depends on nature of gas present in the glass tube. Cathode rays nature characteristics charge by mass is independent of nature of gas and the cathode anode used. So sodium, magnesium, aluminium सबके cathode rays की property similar थी, but anode rays में थोड़ा सा difference आ गया है. Anode rays का जो charge by mass ratio है, anode rays are not protons, they are the positively gaseous ions. अब He plus का charge, Li plus, नियोन प्लस, इन सबका चार्ज तो चलो सेम है, बट हर किसी का मास अलग अलग है. तो चार्ज बाय मास रेशियो विल नॉट बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम. क्लियर? दे आर नॉट प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स तो अभी भी सबके आइडेंटिकल होंगे, बट ये प्रोटॉन्स नहीं थे, इसलिए इनका चार्ज बाय मास वेरी कर रहा है. क्या लास्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से. नचिकेत क्या मैसेज है तुम्हारा? Sir, I'm asking that protons are identical or not. Protons are identical, but anode rays are not identical because they are not protons. Protons तो identical होंगे. लिख देता हूं. Sir, can you explain this second last point? Characteristics like this one. ये वाला No, sir. Below that. Yes, sir. देख, एक बार तुमने हीलियम गैस को लिया ग्लास ट्यूब में, you will get ion He plus ion. One you are taking lithium gas Li plus ion. Another time you are taking neon, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा Ne plus ion. क्या ये तीनों गैसेस आयन का चार्ज सेम है? राइट? +1 +1 +1. Yes, sir. क्या तीनों का मास भी सेम है क्या? हीलियम का, लिथियम का, नियोन का? No, sir. तो क्या ये प्रॉपर्टी सेम आ रही है क्या इनकी? No. अब क्वेश्चन आता है, सर ये क्यों लिखा? हमें पता है नहीं है सेम, बट व्हाई वी आर राइटिंग हियर? Because in case of cathode rays, this property was same, के charge by mass ratio वो सेम था. सेकंड लास्ट पोस्टुलेट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन फॉर कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट. तो इसलिए हम मेंशन करना पड़ा. ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये मुझे इसलिए मेंशन करने पड़े, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी से कुछ अलग थे. क्लियर? Yes, sir. Sir, second point. Anode rays are moving away from anode, like cathode rays are moving away from cathode. So anode rays are not generated by anode, but they are moving away from anode. Yeah? Yes, sir. क्या हम आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. And last वाला का है? Yes. Protons of various substance are identical. Protons identical होते हैं. Anode rays may or may not be identical, but protons are identical. दिख रहा है अभी completely? Yes, sir. देखो, discovery of neutron. James Chadwick
discovered neutron, existence of particle inside the nucleus which is neutral, clear, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। तो इसकी डिस्कवरी 1932 में हुई, काफी लेट हुई थी because of its neutral charge, but the basic logic behind this model, behind this discovery was he was performing some other experiment related to nuclear reaction, उसे by chance न्यूट्रॉन मिल गया था, and charge and mass conservation इसका बेसिक लॉजिक था इसकी डिस्कवरी का। जेम्स चैडविक was performing certain experiment, वो हीलियम पार्टिकल को बेरिलियम पार्टिकल से बम्बार्ड कर रहा था, उनके न्यूक्लियस को कंबाइन कर रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो जब उसने न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया उसे कार्बन मिला, उसने देखा कार्बन का मास 6 यूनिट, इसका चार्ज 6 यूनिट, चार्ज ऑफ हीलियम 2 यूनिट, बेरिलियम चार्ज 4, 4 + 2 6 मैच कर रहा है, क्लियर करना भी चाहिए, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास 9 + 4 13, कार्बन का जो मास मिल रहा था वो मिल रहा था 12 यूनिट। सो क्वेश्चन आया, ये जो कार्बन का 1 यूनिट, जो रिएक्टेंट का 1 यूनिट मास है वो कार्बन में नहीं है तो कहाँ गया? तो जब उसने उस सेटअप में जहां ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था सब कुछ अच्छे से कवर किया और ये चेक किया, वहां पर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज हो रहा था जिसका मास 1 यूनिट था और चार्ज 0, 0 + 6, 2 + 4 6, 9 + 4 13, 12 + 1 13। अब चार्ज और मास कंजर्व हो रहे थे, इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, रिप्रेजेंट किया गया n से। ये अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल था जो 1932 के पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सर मैंने एक न्यूट्रॉन्स को क्वेश्चन लिखा न्यूक्लियस है, के अंदर मे बी पॉसिबल कि तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ अलग टाइप के भी हो। बेसिक लॉजिक इज चार्ज एंड मास कंजर्वेशन, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्लियर? Yes, sir. बोलो। सर न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे तो वो सेपरेट कैसे हो गया? क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस थी, न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे थे, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियस जब कंबाइन हो रहे थे, न्यूक्लियस में चेंजेस इन्वॉल्व थे तो बाहर आ गया वो। यस सर। हाँ सर, हो गया। कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ सर, हो गया। ठीक। सर आपने वो क्या लिखा है, मिली कैम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? सही पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है सही पढ़ा है। मिली कैम्स है, मिली कैम्स है। MILIKNS, ओके मिलिकेन। वैसे मैं बता दूं उसका नाम मैंने अलग अलग बुक में 2 पढ़ा है, कहीं मुलिकेन भी होता है, कहीं मिलिकेन भी होता है, पता नहीं मुझे भी एग्जैक्ट सही क्या है। कुछ बुक्स में ये, कुछ में मैं हमेशा ये लिखता हूँ मिलिकेन। ओके सर। सर यस sir, when the neutrons were not discovered, so how we know their atomic mass? ये एक पार्टिकल है, इसका मास क्या मैं बता सकता हूँ कितना मास है इसका? बोल जल्दी। Yes, sir. Sir, but we take Mass. that mass number is equal to mass of nucleon. एक मिनट, थोड़ा सा मैं बेसिक लॉजिक बताता हूँ। मैं किसी सब्सटेंस को देख रहा हूँ, उसका मास ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है
क्या मुझे ये पता है ये जो मास है इस पार्टिकल का, इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर सिम है, इसके अंदर चिप है, इसके अंदर पता नहीं और क्या क्या है जो मुझे भी नहीं पता, क्या उसका मुझे पता है उसका मास कितना है? नहीं पता। क्या मुझे पूरे सिस्टम का मास पता है? यस। तो मुझे एक सिस्टम का, एक एटम का मास पता था। अब वो एटम में मास प्रोटॉन के कारण है, न्यूट्रॉन के कारण है, किसके कारण है, ये बाद में डिस्कवर हुआ। गॉट इट? Yes, sir. Thank you, sir. कुछ और डाउट हो तो क्लियर करो। चलो, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, फिर आया जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जिसका वैल्यू ऑलरेडी पहले भी तुमने लिखा है। कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, क्या वो था, वो डिटेल में नहीं हमारे पास। यहां से चार्ज बाय मास आया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया -1.6 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन का चार्ज प्लस साइन, सेम चार्ज माइनस प्लस। ये डिस्कवर किया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब चार्ज आया, पहले चार्ज बाय मास आया, इस चार्ज को यहां पे रख दो तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाए। ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत डीप में, मतलब हमें डीप में जाना ही नहीं है, इनके फाइनल रिजल्ट याद रखने। इज दैट ओके? Yes. मिलिकन्स का एक और पॉइंट मैं लिखता हूं। स्टडी मटेरियल सेंटर पे अवेलेबल है। यू कैन कलेक्ट स्टडी मटेरियल फ्रॉम सेंटर नाउ बिटवीन 10 to 4, क्लियर, 11 to 4। और तुम्हारे बिहाफ पर फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी आके कलेक्ट कर सकता है। सर सेकंड स्टडी मटेरियल क्या? सेकंड नहीं, अभी तो फर्स्ट ही है। मतलब कुछ बच्चों ने को अभी लॉकडाउन में एडमिशन लिया था तो शायद ऑनलाइन पूरा प्रोसेस हुआ होगा, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशल, जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है, मतलब जिनके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं मॉड्यूल है। नचिकेत का मैसेज है, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वी हैव क्लास ऑफ फिजिक्स टुमारो, बट शायद सर ने तो चेंज किया है टाइम टेबल कुछ, राइट? ऐसा कुछ बोल रहे हो नचिकेत? Yes. तो यदि सर ने वो क्लास, सर ने कुछ बताया क्या उसकी जगह कोई और क्लास है? नहीं सर। No, sir. तो फिर मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है, तो यदि नहीं बताया तो नहीं होगी फिर कोई भी क्लास। और बेटर है सर को, या तो मैं बोल दूंगा सर से एक बार ग्रुप पे अपडेट कर दें, ठीक है, जैसा भी। चलो, कॉपी किया है, ये पॉइंट समझ लेना। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, इसका बेसिक लॉजिक ये है, लास्ट पॉइंट जो लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10⁻⁹ क्या हम इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं कभी भी? वी कैन नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट ब्रेक द चार्ज। चार्ज हमेशा टोटल चार्ज क्या होगा, एदर वी कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन,
we can have 2 electron, we can have 3 electron, we can't have 3.5 electron. So the total charge है, it is always whole number multiple of charge of electron or maybe positive charge of the proton. So the total charge on a body is always whole number multiple of small charge, that is plus minus E, plus protonic charge positive charge, minus E negative charge. Indivisible, indivisible means which cannot be divided. जो small charge है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का उसे कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सबसे छोटा चार्ज है। और जहां भी पता है ऐसा कुछ आता है, एनी क्वांटिटी इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ समथिंग, इसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन। इस क्वांटाइजेशन मींस डिस्क्रीट इन नेचर, या तो 1 क्या सीधा 2e, वी कांट हैव 1.1 1.2e 1.3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कोई भी प्रॉपर्टी जब होल नंबर मल्टीपल होता है किसी का, उसे उस वर्ड को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मींस डिस्क्रीट होना। क्या इतना क्लियर है अभी ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये मिलिकन सॉलिड ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे टेबल बनाना है चार्ज मास रिलेटिव मास का, जो ऑलरेडी पहले भी बनाया बट यहाँ भी बनाना है, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? क्यों नहीं आ सकता ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री Excuse me, sir. कैसा रहा लेक्चर? अच्छा था. So good. It was good, sir. ठीक है। Sir, one doubt. Sir, what is the name of this chapter? नेम नहीं बताया था क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर नेम बताया होगा ना मैंने, नहीं बताया क्या? बताया बताया सर। हाँ लिखा होगा स्टार्टिंग में शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर।